Okay, we have covered definition of smooth curve, right? हमने definition of smooth curve देख लिया था last class में. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज करते हैं यूनिट टेंजेंट. Now, in the smooth curve, as we have seen in the definition, that the function will be continuously differentiable. Okay, so in that case, at each and every point, you can draw a tangent, and each and every point you can draw a tangent, right? So unit tangent says this is the graph of a smooth vector valued function Rt in 2 or 3 dimensional space. Then the vector r prime t is non-zero tangent to t, and the points in the direction of increasing parameter. Increasing parameter means t1. Sir, recording. Achha. Increasing parameter means this. For this RT1, okay, increasing function, increasing parameter, T is the parameter. Direction of thus by normalizing R prime to, you obtain a unit vector capital T, that is tangent C to the points in the direction of increasing parameter. This is nothing, this is just the, this part is your R prime T, and this is the norm. This is what? Norm. Norm of RT. Okay. This is same as modulus. Okay. मैंने आप लोगों को बताया था कि norm function और mod function, they are basically same, but just norm is more generalized one. Norm is more generalized one. Okay. Okay. So for this problem, let's take this one. RT equal to T square T cube. Okay. RT equal to T cube J X equal to 2. So here simply they said what? Calculate the, find the unit tangent vector of the graph. So use this formula and you can easily find out the unit tangent vector. Okay. Now similarly, now can you tell me what will be unit normal vector? You know what's a normal, which is perpendicular to the tangent? Is there any idea how to go about unit normal vector? नॉर्मल वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सर जो मतलब इसकी स्लोप आएगी. हाँ सर. इसकी स्लोप आएगी क्या क्या बताओ? सर स्लोप निकालेंगे फिर उसका मतलब दोनों जो नॉर्मल की स्लोप होगी उसका प्रोडक्ट माइनस टेंजेंट वेक्टर. हाँ हाँ, इनवर्स और सर दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना इनवर्स ऑफ यूनिट टेंजेंट. हाँ हाँ स्लोप का. एग्जैक्टली. हाँ तो वो वेक्टोरियली कैसे निकालेंगे? वेक्टरली कैसे? हाँ तो हम डेफिनेशन में देखेंगे वेक्टोरियली कैसे निकालेंगे. सर हाइपोथेटिकली कोई वेक्टर इमेजिन कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और कोफिशिएंट को इक्वल पुट कर देंगे. हाँ, हाइपोथेटिकली कोई वेक्टर इमेजिन कर लेंगे और डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? 1 कर देंगे या 0 कर देंगे. डॉट प्रोडक्ट ये 0 ही आएगा ना. 0 आएगा.
एग्जैक्टली तो ये एक आइडिया है, राइट? ये एक काम का आइडिया है। हाँ, टेंजेंट वेक्टर जो होगा कि if this is the unit tangent vector, अगर T अगर another vector है तो U को हम कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा टेंजेंट वेक्टर है, what if I differentiate this vector, then what will happen? TT को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? If we differentiate capital T, what will happen? अच्छा, RT को 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? 60 and 6. नहीं, यहाँ पे देखो, RT को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? टेंजेंट वेक्टर आया। R प्राइम T व्हाट? R प्राइम T इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे टेंजेंट है, राइट? फिलहाल के लिए हम यूनिटनेस नहीं यूज कर रहे हैं, यूनिटनेस जस्ट उसका नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर देख, अब फिर से मैं R डबल प्राइम T अगर करूंगा तो वो किस साइड होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा? देखो, ये R प्राइम T है ना, ठीक है? तो ये इसका डायरेक्शन कहाँ पे है? इसका डायरेक्शन इसका टेंजेंशियल है। नाउ व्हाट अबाउट द डबल प्राइम? 2 बार डिफरेंशिएट करने से बोलो दोस्त, क्या नाम है? नाम भूल गया मैं तेरा। ये इसने जो बताया, क्या नाम है? गौतम? अरे डॉट प्रोडक्ट वाला जिसने बताया अभी। अरे चलो देख लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर इज व्हाट? नॉर्मल again differentiation of the tangent vector. Okay, normal vector is differentiation of the tangent vector. ठीक है? What is it saying? T and T prime T are orthogonal vectors. Okay, so there they want you to recall a formula. If a vectorial function RT has a constant norm, then RT and R prime T are orthogonal vectors. Okay, now what do you mean by constant norm? Constant norm का क्या मतलब है? Constant norm का मतलब है आपका, if it's a just a vector, its norm is constant, any number. That means what? This is something like RT जो होगा, that will be some vector. Okay, this A and B will be numbers, not functions of T, and only norm of RT will be constant. Okay, so it is saying that if RT has a constant norm, then RT and R prime T are orthogonal vectors. Orthogonal means what? Generalization of perpendicular. Okay, इसको हम देखते हैं अभी। Now जो हमारा टेंजेंट वेक्टर निकला, तो उसका नॉर्म जो है दैट इज ऑलवेज 1, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर, सो इसका नॉर्म हमेशा 1 होगा। तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। तो T एंड T प्राइम दे विल बी ऑर्थोगोनल। बेसिकली इसका जो मतलब बन रहा है, यहाँ पे एक बार देखते हैं।
यहाँ पे एक मिनट, एक बार समझते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, एक norm of RT is some constant. Okay. Then we are saying RT and R prime T are perpendicular or orthogonal. So to show what? ऑर्थोगोनल शो करने के लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर, दैट मींस RT dot R prime T should be 0. Dot product, this is your dot product. So start from here. Can we write it down? ये लिख सकते हैं हम, RT dot RT equal to norm of RT square. Guys, can we write it down like that? Yes, sir. U is a vector. Yes, sir. U dot U, Sir. है ना? Okay, same thing. So this is what? Square. Now, what will be ddt of RT dot RT? ये आपका 0 हो जाएगा, इस साइड कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये बेसिकली प्रूफ हुआ कि अगर कांस्टेंट नॉर्म रहेगा देन we can say that RT and R prime T they are orthogonal. सर एक बार बताना सर, आपने यहाँ पे प्रूफ क्या किया मतलब? अभी हमने यहाँ पे नहीं देख रहे थे, यहाँ पे क्या बोला गया, recall from theorem 12.2.8 that if a vectorial function RT has a constant norm then RT and R prime T are orthogonal vectors. That's what I have just proved. ठीक है सर. Okay. So now come to that unit tangent vector, which is RT divided by R. ये आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर है. नाउ व्हाट इज दिस, नॉर्म ऑफ टी क्या है हमारा, ऑलवेज 1 है कि हमने इसको यूनिट बना लिया है बाय डिवाइडिंग इट विद द नॉर्म ऑफ R प्राइम टी. 1 क्या है, कांस्टेंट है.
ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, टी एंड टी प्राइम टी, they are orthogonal to each other. That means what? Dot product of them is 0. Dot product of them is 0. Now अगर dot product 0 होता है तो sorry, अगर orthogonal होता है, that means what can we say? This t prime t is perpendicular to this tangent vector. That means what? This is your normal vector. ठीक है, फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इसको नॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई आईडिया, यू हैव एनी डाउट? सर एक बार रिपीट कर दो सर। हम क्या देख रहे थे, मैंने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर? ओके, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे होगा, टेंजेंट की, टेंजेंट ये है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऐसे। तो हमें यहाँ पे है आपका एंटी, ये नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि नॉर्मल वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ किया, यहाँ पे इसको हमने प्रूफ किया दैट व्हाई सो, जो हमने नॉर्मल वेक्टर निकाला, व्हाई इट इज लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या शो किया, पहले हमने दिखाया वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लेंथ अगर होता है हमारा, ठीक है, कांस्टेंट लेंथ मींस नॉर्म जो होगा, इफ दैट्स अ कांस्टेंट देन दैट वेक्टर एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट वेक्टर दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वो हमने शो किया, दैट वी हैव शोड हियर, राइट। और इसी प्रॉपर्टी को हमने इसके लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो हमें एक ऐसी वेक्टर की तलाश है जो टेंजेंट वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, which is orthogonal और perpendicular to the tangent vector, ठीक है। और जो हमने टेंजेंट वेक्टर निकाला था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो the norm of this tangent vector is 1, so 1 is of constant length, so what can we say, tt and t prime t, they will be orthogonal or perpendicular to each other, right? तो इसके साथ हमारा नॉर्मल का डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट t prime t is orthogonal to tt, ठीक है। तो यही हमारा नॉर्मल वेक्टर है और ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सर यस, सर किसी ऐसे वेक्टर की देना, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल जिसकी कांस्टेंट नॉर्म ना हो। कांस्टेंट नॉर्म ना हो, अरे आरटी ले लो ना, आरटी जो हम सर आरटी में हम कोई वैल्यू रखेंगे जैसे t = 1 t = 2, हाँ फिर हाँ तो हाँ हाँ, कांस्टेंट आ जाएगा। वही तो। अरे देखो, ये कुछ नहीं, ये ना नॉर्मल जैसे कोई फंक्शन है, इसका आप लोगों को मैं वो समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक हमारा आरटी है, तो ये तो एक फंक्शन है, ठीक है। तो आप y = fx में चले जाओ सीधे, गो टू y = fx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको, ये आपका मान लो कर्व है, ठीक है, यहाँ पे अगर टेंजेंट चाहिए, यू वांट टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो आपको इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप चाहिए, जी सर। राइट। यस सर। बेसिकली आपको ये थीटा है तो आपको tan थीटा चाहिए, ठीक है। यू वांट tan थीटा, एंड व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज m, m = tan थीटा, ठीक है। और m क्या है हमारा, ui dx at a specific point, right, x = let's say c, ना, c पॉइंट अगर आप
सी पॉइंट अगर आप पुट करोगे तभी तो स्पेसिफिक वैल्यू आएगा। जी सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो x इक्वल टू जब भी आप सी पुट करोगे तभी आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप दे रहा है ये। जी सर। तो यहाँ पे भी t का अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू पुट करोगे लेट्स से 2, तभी तो ये आपको ये इसका वैल्यू देगा। और अगर नहीं पुट करेंगे तो फिर वो नहीं देगा कांस्टेंट नहीं नॉर्म। नहीं नहीं, वो नहीं, अगर t का अगर इफ यू डोंट पुट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ t देन इट विल नॉट गिव यू द टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो हम तब देगा जब हम x, जैसे यहाँ पे c पुट करके यहाँ पे भी हमें t का स्पेसिफिक वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तभी जाके यूनिकनेस तो आएगा ही नहीं फिर। जी सर। सर मतलब कांस्टेंट नॉर्म का मतलब जब हम वैल्यू पुट करके दें उसे। हाँ हाँ, वही एक कह नहीं ना कि इंक्रीजिंग पैरामीटर, पैरामीटर तो हम बेसिकली फिक्स कर दे रहे हैं वहां पे। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। आर यू, डू यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी और, कोई और को और कोई डाउट है यहाँ पे? ये जो एग्जांपल है देखो, सब कुछ हमारा जो मोटिवेटेड है दैट इज फ्रॉम द रियल वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में क्या है, इसको हम आरटी कह रहे हैं, ये हमारा आई है, ये जे है, सेम चीज हो रहा है। तो नॉर्मल कहाँ पे होगा? इस साइड होगा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर। तो वहां पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया एंड वी से दैट नॉर्मल वेक्टर विल बी okay. And of course this condition is important as it's in the denominator that t prime t cannot be 0. Okay. Okay. Now try this problem. Find tangent and normal for the circular helix. This is these two vectors. They are not unit tangent. Find the tangent vector and the normal vector for this circular helix. For that हम थोड़ा और प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, इस फंक्शन के लिए निकालो, फाइंड आउट टी एंड एन टी फॉर दिस फंक्शन, टी स्क्वायर 2 cos t and 2 sin t. सर टी की क्या वैल्यू होगी? t की कोई वैल्यू नहीं होगी, एक्सप्रेशन आएगा ना अच्छा, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें। निकालना। हाँ, ठीक है सर। नॉर्मल एंड टेंजेंट वेक्टर। सर टी प्राइम टी है 2 माइनस 2 साइन टी प्लस 2 कॉस टी अपॉन 2√2। क्या 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 बताया तुमने, ये बताओ मुझे पहले, है ना? सर 2t 2t माइनस 2 साइन टी 2ti। प्लस हाँ, फिर सर 2 कॉस टी अपॉन 2√2।
अपॉन 2 root 2 2 root 2 2√2 कैसे आ गया? नहीं सर 2√2 नहीं 40² + 4 है हाँ सर यही आ रहा है। सर इस एक मिनट तो देखो ये तुमने क्या निकाला? दिस इज नॉट नथिंग बट आर प्राइम की, ठीक है। अब हम इसका नॉर्म निकालेंगे। व्हाट विल बी नॉर्म ऑफ आर प्राइम की? आर प्राइम की का नॉर्म होगा √2t² प्लस -2 sin t का होल स्क्वायर प्लस 2 cos t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा √4t²। तो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आने से ये हो जाएगा आपका 1 sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। तो ये हो गया आपका 2√t² प्लस 1। तो दिस विल बी द नॉर्म। तो इससे डिवाइड कर लिया आपको ऊपर वाला। तो आर प्राइम सॉरी जो आपका आर प्राइम नहीं कह रहे, तो आपका टी होगा कैपिटल टी की, दैट विल बी जो आपने बोला था टी आई -2 sin t ये प्लस 2 cos t ए अपॉन 2√t²। ठीक है। समझ में आया ये सबको? यस सर। यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा एक चीज बहुत ही एक सिंपल सा करो, शो दैट सर आपने नॉर्मल वेक्टर भी बोला था शायद निकालना। अच्छा हाँ नॉर्मल निकालो। नॉर्मल निकाल पाओगे ना? अब तो अब इसी का फर्स्ट पहले आपको फिर से yes sir डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वो सर हाँ है ना, सर सेम ही मेथड लगेगा लेकिन लेंथी बहुत हो गया। लेंथी बहुत हो गया। ओ अच्छा हाँ सही। ये आपको बस इसको वेक्टर वैल्यू फंक्शन कंसीडर करके सेम मेथड कर लो। अच्छा एक जो अभी किसी कोई पूछ रहा था तो उसके जवाब में ये प्रॉब्लम है। अच्छा आप लोगों का इसके बाद क्लास है? कैन आई हैव लाइक 5-10 minutes more? Yes, sir. मतलब I will get that time or you have a class? Sir, we have a Yes. class. Okay. ठीक है. So show that this RT has constant length and is orthogonal to its derivative. ये करना. How to go about it? ये कैसे करेंगे दोस्तों? सर RT.R' equals to 0. हाँ तो उससे पहले कांस्टेंट लेंथ के लिए हमें क्या करना है? यहाँ से हम Norm. डायरेक्ट नॉर्म सर नॉर्म निकालना है पहले नॉर्म तो देख ही पा रहे हैं हम. नॉर्म क्या होगा यहाँ पे? सर 1 नॉर्म हमारा 1 होगा.
3 Sir, root 3 plus रूट 1. 3 होगा नॉर्म। यार कौन Yes, नहीं sir, कर पा 2. रहे हो? Yes, sir. क्या बताऊं मैं? क्या ये हो गया हमारा कांस्टेंट नॉर्म वाला। अब हम क्या करेंगे? आर प्राइम टी क्या होगा हमारा? दैट इज माइनस 90i, j part will be 0j, this will be cos t k। ठीक है, अब सिंपली आपको आर टी और आर प्राइम टी डॉट प्रोडक्ट दिखाना है। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस 90 cos t, है ना? 0 into 3 that will be 0 plus 90 cos t। From here you can say this is 0. So RT and R prime t, they are orthogonal to each other। ऑर्थोगोनल का साइन भी यही है, परपेंडिकुलर वाला। ओके, अच्छा हेलिक्स वाला कर लो। ओके, फाइंड टेंजेंट वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। यही है हेलिक्स का इक्वेशन। ओके, x इक्वल टू एक ऑस्ट्रेलिया, उल्टा हो जाएगा। Find out the unit tangent vector and unit normal vector for this circular helix। बताओ बताओ, ये हुआ? minus sin t I cap माइनस sin t I cap plus ये cos आई, t ये आई होगा, हाँ, प्लस cos t, plus j cap हाँ, plus 2k cap upon 1 अपॉन plus 4 under root 1 plus 4t square 1 प्लस 4t square। ओके, तो दिस इज आवर t। ठीक है, सर टी स्क्वायर नहीं आएगा सर? सर ये टी स्क्वायर कहाँ है? हाँ सर, सर नीचे √5 आएगा। हाँ रूट Sir, फाइव root 5 आएगा यस सर, नीचे। रूट 5 है। एग्जैक्टली। अरे कर देंगे ना तो तो रूट साइंस का 5 t कैसे प्लस, आएगा? अरे ऊपर एक क्या है आपका, दिस इज योर आर प्राइम टी ना, इसका नॉर्म निकालना है ना ही कि इसका, आप अपने आर का नॉर्म निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर प्राइम टी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ आर प्राइम टी अच्छा ना। ठीक तो है आर सर, प्राइम टी तो ये है, आर तो टी का साइंस का मान टी प्लस कॉस का टी प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4, दैट इज √5। 5। ओके सर। ठीक है,
ठीक है, नॉर्मल वेक्टर भी निकल जाएगा इस तरह से। ये कैलकुलेट करना है और क्या करना है आपका, नॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इन दिस पार्ट। यहाँ पे हमने ये टेंजेंट वेक्टर प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, हमने पहले इस थ्योरम का यूज किया। ठीक है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ कांस्टेंट लेंथ अगर होता है, फिर पहले हमने दिखा दिया कि दे आर ऑर्थोगोनल। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये जो कॉन्स्टेंसी है, वी जस्ट रिमूव दिस कॉन्स्टेंसी। हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उस चीज को हमने निकाल लिया और हम उसको अलग से एज ए वेक्टर यूज करने लग गए। दैट मींस वी हैव यूज्ड दैट, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। के बाद हमने इसको हम यूज करने लग गए। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो आपका नॉर्मल वेक्टर जो होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी ए कांस्टेंट वन। ठीक है, तो आप लोग शायद इसका ओवरऑल एस्पेक्ट समझ पा रहे हो, दैट हाउ वी हैव यूज्ड दैट प्रॉपर्टी व्हेन इट्स ए कांस्टेंट वेक्टर। ओके, किसी ने पूछा था बीच में मेरे से कि किस तरह से हम लोग जो है आर टी की वैल्यू, आर प्राइम टी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। सो आई टोल्ड देम दैट जब हमें टेंजेंट निकालना होता है, टी इक्वल टू एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, देन ओनली विल गेट योर स्लोप। ओके, so they are not constant, they are vector valued function, they are vector valued function. Okay, here you have used that constancy property, then we just remove it while doing in practical. Okay, practically जब हम प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तब हम constancy जो वाला जो पार्ट है that has been removed. ओके, ठीक है दोस्तों, चलो फिर आज के लिए इतना ही।